یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو شروع ان 60 روپوں سے ہوتی ہے، لیکن اینڈ نوٹوں سے پورا کمرہ بھی بھر دیں تو کم ہے۔ کون ہے وہ؟ کوئی جادوگر یا بازیگر جس نے ابھی پچھلے سال ہی ایک ایسی بازی کھیلی کہ دنیا کو لگا جیسے جادو ہو گیا۔ دن تھا 23 دسمبر سال 2025۔ پاکستان کے تمام نیوز چینلز پر ایک ہی خبر چل رہی تھی۔ اینکرز گلا پھاڑ کر چیخ رہے تھے، ہر بولی پر لال ڈبے گھوم رہے تھے، کیونکہ یہ کوئی معمولی خبر نہیں تھی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نیلامی تھی، اور اس شخص کے لیے اس کی زندگی کی سب سے بڑی بازی جو وہ جیتنے جا رہا تھا۔ بولی اوپر چڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آخری بولی لگتی ہے 134 ارب روپے۔ 134 بلین روپیز۔ ہال میں سناٹا چھا گیا اور سب کی نظریں اب اس 72 سالہ بندے پر تھیں، جس کے چہرے پر کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ایکسپریشن نہیں۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہچکچایا۔ پھر اس کا نمائندہ پرسکون آواز میں کہتا ہے 135 بلین۔ 135 ارب روپے اور گیم اوور۔ اس بولی کے ساتھ ہی پاکستان کی نیشنل ایئر لائن اس شخص کی ہو گئی، اور جادو یہ تھا کہ 135 ارب روپے کی بازی جیتنے والے کی اپنی کارپوریشن کی مارکیٹ ویلیو ہی صرف 66 ارب روپے تھی۔ مگر ایسی کیا ضد تھی کہ اس کو یہ بازی ہر حال میں جیتنی تھی؟ یہ راز اس کہانی کے درمیان میں کھلے گا، مگر کلائمیکس تک پہنچتے پہنچتے بلیو می آپ بھی پیسہ بنانے کے گر سیکھ جائیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ بھلا کون ہے یہ جو ہندوستان میں سب چھوڑ آیا مگر آج پاکستان میں سب کچھ خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، جس نے 60 روپے کو اربوں روپے میں بدل دیا، جس سے ایسا کیا چھن گیا کہ پی آئی یہ خریدنا اس کا مشن بن گیا، جس کا بینک ڈوب گیا، دل ٹوٹ گیا، مگر وہ پھر ابھر آیا، معیشت کی دنیا میں ہواؤں کے مخالف اڑ کر دکھایا، جو سوچا وہ کر دکھایا، جو چھوا وہ سونا بنایا، اکانومی کے طوفان میں بھی وکٹ پر کھڑا رہنے والا، اسٹاک کے مائنس نمبرز کو پلس کر دینے والا، بنجر علاقوں کو بدل کر لوگوں کے خوابوں کے گھر بنا دینے والا، کراچی کی زمینوں سے لے کر پاکستان کی ہواؤں تک راج کرنے والا، دی اکانومی کنگ، ون اینڈ اونلی عارف حبیب۔ ہمارا ملک ہے، ہمیں یہاں سے بھاگنے کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، پازیٹیولی کام کرنا چاہیے اس کے لیے، اور انشاءاللہ ہم ریکور کر جائیں گے، پاکستان جو ہے وہ ریکور کر جائے گا۔ آج کی کہانی کا کلائمیکس بہت ہی کمال ہونے والا ہے، کیونکہ جہاں سے بات شروع کی ہے وہیں ختم کریں گے، کیونکہ کہانی ہے پاکستان کے اس بلینئر کی جو کسی ہارورڈ یا آکسفورڈ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، لیکن بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھے لکھے ایکسپرٹس اسی کے گیان پر چلتے ہیں۔ آپ نے بڑی بڑی سکسیس اسٹوریز سنی ہوں گی جو زیادہ تر شروع ہوتی ہی کسی بڑے آئیڈیا سے ہیں، بڑی شاندار ڈگری سے، لیکن یہ کہانی بالکل مختلف ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے ایسی فیملی سے جو اپنا سب کچھ لٹا کر ایک نئے ملک آ رہی ہے۔ سال ہے سن 1948 اور انڈیا کی ریاست گجرات کے ایک چھوٹے سے شہر باٹوا سے ایک خاندان پاکستان کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ چائے کی پتی کا کاروبار کرنے والا یہ خوشحال میمن خاندان پارٹیشن کے دوران اپنی ساری جائیداد بھارت چھوڑ کر پاکستان آ جاتا ہے، اور جب کراچی پہنچتا ہے تو دولت کے نام پر اس کے پاس صرف چند تولے سونا تھا، وہ جو گھر کی ایک خاتون نے کچھ کپڑوں میں چھپایا ہوا تھا۔ اسی خاندان کا سب سے چھوٹا چشم و چراغ سن 1953 میں پیدا ہوا، نام رکھا گیا عارف حبیب۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ اعلیٰ تعلیم تو بس ایک لگژری ہی تھی، اس لیے 17 سال کی عمر میں عارف نے میٹرک پاس کیا اور فارمل ایجوکیشن وہیں ختم ہو گئی۔ نہ کالج، نہ کوئی ڈگری، نہ کوئی خاندانی فیکٹری، یہاں تک کہ 1970 آ گیا، جس میں اس خاندان کی قسمت بدلنے کا آغاز ہوا یوں کہ عارف کے بڑے بھائی نے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ لائسنس حاصل کر لیا۔ لائسنس سستا مل گیا کیونکہ مشرقی پاکستان میں بحران کی وجہ سے مارکیٹ کریش ہو رہی تھی، اور یہیں پر بڑے بھائی نے عارف کو بھی ملازمت پر رکھ لیا اور پہلی تنخواہ طے کی 60 روپے۔ اور پھر اسٹاک ایکسچینج میں ہی اس میٹرک پاس لڑکے کی اصل تعلیم کا آغاز ہوا، ایسی تعلیم جو اسے پاکستان کی اکانومی کا ماسٹر مائنڈ بنانے والی تھی۔ تب کراچی اسٹاک ایکسچینج آج جیسا کمپیوٹرائزڈ اور خاموش نہیں ہوتا تھا، اس وقت وہاں ایک اوپن آؤٹ کرائے سسٹم تھا، سمجھیں ایک مچھلی بازار تھا۔
सिगरेट के धुएं से भरा हॉल, एक दूसरे को धक्के देते हुए सैकड़ों ब्रोकर्स और कान फाड़ देने वाला शोर। एक 17 साल का लड़का, उसके लिए तो माहौल बिल्कुल ही ओवरवेलमिंग, बल्कि ये समझें कि ब्रूटल था। कोई और होता तो शायद कुछ ही दिन में भाग जाता, लेकिन आरिफ हबीब ने इस हंगामे में एक गैप तलाश किया। उन्होंने नोट किया कि स्टॉक मार्केट में सारा दिन चीखने वाले ब्रोकर सब कुछ कर रहे हैं, बस एक काम नहीं कर रहे। वो कंपनियों की बोरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट्स नहीं पढ़ते। वो अफवाहों पर या फिर एक दूसरे को देखकर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। और फिर आरिफ ने वही किया जो कोई नहीं कर रहा था। किसी कंपनी की सालाना रिपोर्ट आती तो वो उसे गौर से पढ़ते। उनका मुशाहिदा इतना जबरदस्त था कि वो बता सकते थे कि कौन सी कंपनी अंदर से खोखली है और कौन सी कंपनी फ्यूचर में सोना उगलने वाली है। और फिर वो वक्त आया कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से पहले उस लड़के के पास जाकर मशवरा जरूर लेते, जिसका उसूल एक ही था, जब मार्केट जज्बात और अफवाहों पर चल रही हो तो सिर्फ डेटा और कंपनी की असल वैल्यू पर नजर रखो। और अभी ये सब चल ही रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा ज़लज़ला आ गया। वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन का आगाज कर दिया और रातों रात प्राइवेट सेक्टर से बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज और बैंक छीन लिए गए और सब पर सरकारी कब्जा हो गया। जो खानदान जमीनों और फैक्ट्रियों के मालिक थे सेकंडों में बर्बाद हो गए, लेकिन आरिफ हबीब जैसे लोग महफूज रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई फैक्ट्री, कोई फिजिकल एसेट था ही नहीं। आरिफ हबीब सिर्फ सर्विसेज देख रहे थे और कागजों की खरीदो फरोख्त कर रहे थे। इस क्राइसिस ने आरिफ हबीब को एक बात सिखा दी कि जब मार्केट में खौफ फैलता है, जब इन्वेस्टर डर के मारे अपने शेयर्स कौड़ियों के भाव बेचते हैं, तो कोई ऐसा बंदा होता है जो वही शेयर सस्ते दाम खरीद कर अमीर बन रहा होता है। मार्केट कभी खत्म नहीं होती, बस दौलत एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है। आरिफ हबीब अपने हार्डवर्क से, पैशन से स्टॉक मार्केट के एक खतरनाक खिलाड़ी बन चुके थे। ऐसा बंदा जो क्राइसिस में और बड़ा बन जाता है। और अब उसे इंतजार था अगले बहरान का, जो आया सन 1998 में, 1998। अब वक्त तेजी से गुजर रहा था। 60 रुपए कमाने वाला वो लड़का अब सिर्फ एक क्लर्क नहीं रहा था। 1980 की दहाई गुजरते गुजरते आरिफ हबीब मार्केट के एक बड़े प्लेयर बन चुके थे। बल्कि 1992 में तो कराची स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स ने आरिफ हबीब को अपना प्रेसिडेंट चुन लिया था। प्रेसिडेंट। और एक बार नहीं, अपनी जिंदगी में वो 6 बार स्टॉक एक्सचेंज के सदर बने। आरिफ हबीब अच्छी तरह जानते थे कि ये पुराना मछली बाजार वाला सिस्टम मजीद नहीं चल सकता। फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे थे, मार्केट को अब बड़ा होना था, तो उन्होंने ये पुराना सिस्टम उखाड़ कर बाहर फेंक दिया और मार्केट को कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग पर शिफ्ट कर दिया। फिर ये आरिफ हबीब ही थे जिन्होंने सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी यानी सीडीसी की बुनियाद रखी, ताकि ये कागजी सर्टिफिकेट्स का झंझट ही खत्म हो जाए। सब ठीक जा रहा था। 1998 आ गया, मई का महीना। इंडिया ने एटमी धमाके कर दिए और जवाब में पाकिस्तान ने भी एटमी तजुर्बा कर दिया। ये मुल्क कौम के लिए फख्र का लम्हा था, लेकिन इसकी बहुत बड़ी और भारी कीमत भी थी। अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्कों ने पाकिस्तान पर सख्त तरीन पाबंदियां लगा दी, जिसके रद्दे अमल में पाकिस्तानी हुकूमत ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल काम कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। बैंकों में पड़ा आधा पैसा डॉलर्स में था, सब लॉक हो गया। मुल्क में खौफ फैल गया। 8 मई से 14 जुलाई के दरमियान कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 50% से ज्यादा गिर गया। मार्केट अपनी आधी से ज्यादा वैल्यू खो चुकी थी। हर इन्वेस्टर, हर ब्रोकरेज हाउस पैसा निकाल कर भाग रहा था। समझे, ब्लड बाथ था। आम इन्वेस्टर्स का रिएक्शन तो अपनी जगह ठीक ही था, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। सब यही सोचते थे कि अपना कैश बचाओ और साइड पर हो जाओ। लेकिन यही वक्त होता है जब पता चलता है कि कौन आम इंसान है और कौन आरिफ हबीब है। आरिफ हबीब तो थे ही मैन इन क्राइसिस। उन्हें ऐसी सूरत हाल ही में पैसा बनाना आता था जब पूरी मार्केट चीख रही हो, माल बचाओ, भागो। तब आरिफ हबीब जैसे कुछ बंदे मार्केट में खड़े थे, जिनका एक ही ऑर्डर था, खरीदो,
जो मिल रहा है खरीद। उनके करीबी दोस्त भी उन्हें कहने लगे, आर यू क्रेजी, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है और तुम अपना पैसा डूबती हुई कंपनियों में डाल रहे हो। लेकिन आरिफ हबीब की नजरें जहां देख रही थीं, वहां किसी की नजर नहीं जा रही थी। वो जानते थे कि मार्केट में 2 + 2 हमेशा 4 नहीं होता, कभी ये 0 बन जाता है और कभी 6 बन जाता है। उन्हें पता था कि जो कंपनियां वो खरीद रहे हैं उनकी मशीनें अब भी चल रही हैं, वो अब भी माल बना रही हैं जिसकी असल वैल्यू कहीं ज्यादा है। पॉलिटिकल टेंशन खत्म होगी, मार्केट बाउंस बैक करेगी और 2 + 2 6 बन जाएगा। आप ये समझें कि ये एक तरह की ब्लाइंड बैग थी, एक अंधा जुआ था जो ठीक निशाने पर लगा। पाबंदियां नरम हुई, मार्केट ने सांस ली और सिर्फ 1 साल के अंदर मार्केट 47% ऊपर चली गई, बल्कि 2 साल में वो अपने पुराने लेवल से भी डबल हो गई। जिस शख्स ने भी बॉटम पर शेयर्स खरीदे थे, अब वो मार्केट का बादशाह बन चुका था। इस एक मूव ने आरिफ हबीब को इतना कैश दिया कि 2000 में उन्होंने पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी खड़ी कर दी। आरिफ हबीब अब सिर्फ ब्रोकर नहीं रहना चाहते थे, वो मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां और बैंक खरीदना चाहते थे। और यही ख्वाहिश उन्हें 2006 में एक ऐसे फैसले तक ले गई जिसने पूरी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को हिला कर रख दिया। एक्चुअली उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल्स खरीदने की ठान ली। एक ऐसा फैसला जो उनके लिए एक भयानक ख्वाब बनने वाला था। आरिफ हबीब ने सन 1998 के क्रैश से बहुत दौलत कमाई, लेकिन अब वो सिर्फ शेयर्स तक महदूद नहीं रहना चाहते थे। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और इदारे खरीद कर एक इंडस्ट्रियल अंपायर खड़ी करना चाहते थे। और फिर आया सन 2005, आरिफ हबीब का गोल्डन ईयर। ये वो साल था जब आरिफ हबीब जिस चीज को छूते वो सोना बन जाती। मई 2005 में उन्होंने फातिमा ग्रुप के साथ मिलकर पाक अरब फर्टिलाइजर की प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लिया। सामने मुल्क के सबसे बड़े टाइकॉन बैठे थे। बोलियां शीशे के एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाली गई। बॉक्स खुला तो आरिफ हबीब के कंसोर्शियम ने 14.1 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर सबको हैरान कर दिया। फिर आरिफ ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। उन्होंने बांग्लादेश के रूपाली बैंक के पाकिस्तान में तमाम ऑपरेशंस खरीद लिए और उसका नाम रखा आरिफ हबीब बैंक। जरा सोचें यार, वो लड़का जिसकी फैमिली सन 1947 में पाकिस्तान खाली हाथ आई थी, आज वो उसी मुल्क में अपना प्राइवेट बैंक खड़ा कर रहा था। कराची की फाइनेंशियल स्ट्रीट, क्वींस रोड पर उनका आलीशान हेडक्वार्टर बन रहा था। और अगले ही साल 2006 में आरिफ हबीब ने अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक टारगेट पर नजरें जमा ली। कोई आम फैक्ट्री नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स। हुकूमत इस मिल को प्राइवेटाइज कर रही थी। आरिफ हबीब ने एक ग्लोबल कंसोर्शियम बनाया जिसमें सऊदी अरब और रूस की पार्टी शामिल थी, जिन्होंने स्टील मिल के 75% शेयर्स $362 मिलियन में खरीद लिए। डील फाइनल हो गई, साइन भी हो गए। आरिफ हबीब अब पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एसेट के मालिक थे। लेकिन आपको तो पता है कि पाकिस्तान है भाई, यहां कोई भी मैदान हो, खेल हो, सियासत हो, मईशत हो, स्क्रिप्ट किसी भी वक्त बदल सकती है। जून 2006 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक 9 रुकनी बेंच ने एक तारीखी फैसला सुनाया। वो ऑर्डर क्या था? ये कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन जिस पर साइन हो चुके थे उसे कैंसिल कर दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली बार था कि स्टेट की तरफ से बेची गई कोई चीज सुप्रीम कोर्ट ने वापस छीन ली हो। अदालत का कहना था कि डील में बेज़ाब्तियां हुई हैं, स्टील मिल्स को सस्ते दामों बेचा गया है। आरिफ हबीब और उनके कंसोर्शियम ने जाहिर है इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद ही किया, लेकिन फैसला आ चुका था। स्टील मिल्स उनके हाथों से निकल चुकी थी। अब ये फैसला ठीक था या गलत था, उस पर तो कई वीडियोस बन सकती हैं, किताबें लिखी जा सकती हैं, फैसले चेंज होते रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हुआ क्या, ये समझिए। इफ्तिखार चौधरी को लगा था कि उसने स्टील मिल्स वापस लेकर उसे बचा लिया है, स्टील मिल्स को, लेकिन हकीकत कुछ और ही साबित हुई। आरिफ हबीब जिस वक्त ये मिल खरीद रहे थे वो सालाना 7 अरब रुपए के प्रॉफिट में थी।
उसके अकाउंट में 9 अरब रुपए कैश पड़ा था स्टील मिल्स के। लेकिन जानते हैं प्राइवेटाइजेशन कैंसिल होने के बाद क्या हुआ? सियासत, करप्शन और ओवर स्टाफिंग की वजह से स्टील मिल्स को हर महीने 1.4 अरब रुपए का नुकसान होने लगा और बिलाखिर जून 2015 में वो हमेशा के लिए बंद हो गई। जिस मिल को रियासत ने प्राइवेट होने से बचाया था, वो रियासत के खरबों रुपए डुबोने के बाद बंद हो गई। इस एक फैसले ने पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को 19 साल के लिए फ्रीज कर दिया। आरिफ हबीब जैसे तैसे करके स्टील मिल्स का गम भुलाकर आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा क्राइसिस जिसने इस फौलादी इंसान को भी हार्ट अटैक दे दिया। ऐसा लगता था कि आरिफ हबीब ने हर बहरान को अपने हक में मोड़ना सीख लिया है, लेकिन सन 2008 में कुछ ऐसा होने वाला था जो आरिफ हबीब तो क्या दुनिया में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अमेरिका से शुरू होने वाले ज़लज़ले ने पूरी दुनिया की मार्केट्स को हिलाकर रख दिया था। उससे जो सुनामी पैदा हुआ वो कराची स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस हो गया। अप्रैल 2008 में जो मार्केट 15,676 पॉइंट्स पर खड़ी थी, सिर्फ 2 महीने के अंदर 48% गिर गई। इन्वेस्टर्स की चीखें निकल गईं। यहां तक कि रेगुलेटर्स ने खौफ के मारे एक ऐसा फैसला कर लिया जिसने हालात को मजीद बिगाड़ दिया। उन्होंने मार्केट को गिरने से रोकने के लिए एक मसनूई फ्लोर लगा दिया, यानी 9,144 पॉइंट से नीचे कोई शेयर बेचा नहीं जा सकता। यह स्टॉक एक्सचेंज की पूरी तारीख का सबसे भयानक फैसला था। नतीजा, मार्केट पूरी तरह लॉक हो गई और मुसलसल 108 दिन तक फ्रीज रही। जरा सोचें यार, आपके पास अरबों रुपए के शेयर्स हैं, लेकिन आप उन्हें बेच नहीं सकते। लिक्विडिटी यानी कि कैश मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुका है। एक तो खरीदार कोई नहीं, ऊपर से बेचने पर पाबंदी। आरिफ हबीब लिमिटेड के क्लाइंट्स ने धड़ाधड़ डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। लोग ब्रोकरेज हाउस के पैसे डुबोकर भागने लगे। दूसरी तरफ उनका अपना बैंक आरिफ हबीब बैंक, वो भी क्राइसिस का शिकार था। उस बैंक ने जितने भी लोन दिए थे उनमें से 25% डूब गए। वो बैड डेट्स बन गए। वो बैंक जो आरिफ हबीब के नाम के साथ जुड़ा था, उनकी आंखों के सामने दिवालिया होने की तरफ था। टेंशन इतनी शदीद थी कि उसने इस मजबूत इंसान को भी तोड़कर रख दिया। आरिफ हबीब ने इस नाकामी को शदीद दिल पर लिया और उसी साल सन 2008 में ही उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मार्केट के बादशाह का दिल इस टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो बिस्तर से लग गए। समझें, ये उनकी जिंदगी का सबसे डार्क फेज था जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। बाद में खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो शदीद डिप्रेशन में चले गए थे। कई हफ्तों तक घर से कदम बाहर नहीं निकाला था। वो कहते हैं कि उन्हें लगने लगा था कि इस जिल्लत से तो मौत एक बेहतर ऑप्शन है। मौत की ख्वाहिश, ये वो लफ्ज हैं जो एक अरबपति इंसान कह रहा था। उसे लग रहा था कि उसका करियर, उसका नाम, सब कुछ खत्म हो चुका है। ये फॉल ऑफ आरिफ हबीब था। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या आरिफ हबीब ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं, वो एक सर्वाइवर है। और आप जानते सर्वाइव करने की ट्रिक उन्होंने कहां से सीखी? क्रिकेट से। जी हाँ, क्रिकेट से। मेरे ज़हन में तो और भी बहुत से क्रिकेटर आ रहे हैं जो कि मुश्किल हालात में सर्वाइव करते हैं। आरिफ हबीब भी क्रिकेट के शहदाई हैं और इस उम्र में भी अक्सर इतवार को किसी न किसी मैदान में नजर आते हैं। बल्कि उन्होंने तो बिजनेस के गुर भी क्रिकेट से सीखे हैं। क्रिकेट ने जो है वो जो स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत काम आए कि आपको जो बॉल समझ आए उसी को आप खेलें, और आप पेशेंस आप में होना चाहिए। आप जो है वो जल्दी ना करें। क्रिकेट के प्रिंसिपल्स हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। और अगर आपको भी एक कामयाब इन्वेस्टर बनना है तो आरिफ हबीब की ये बात हमेशा याद रखें। आपको हर हाल में विकेट पर खड़े रहना है, सही बॉल को हिट करना है, जो बॉल समझ ना आए उसे खामोशी से छोड़ देना है और नजर हमेशा स्कोर बोर्ड पर रखनी है। आरिफ हबीब ने जिंदगी भर यही तो किया है। उन्होंने अपनी अना को मारा, समझ गए कि बैंक चलाना उनके बस की बात नहीं और एक कड़वा घूंट पीकर बैंक बेचने का फैसला कर लिया।
यही बैंक बाद में समिट बैंक बना। 2008 का ये क्रैश आरिफ हबीब के लिए एक वेकअप कॉल थी। उन्हें एक बात समझ आ गई कि कागजी दौलत किसी भी वक्त हवा में उड़ सकती है। कंप्यूटर का एक बटन दबा और अरबों रुपए गायब। और यहीं से आरिफ हबीब ने वो ट्रैक पकड़ लिया जिसने उन्हें एक ब्रोकर से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाइकॉन बना दिया। 2008 के खौफनाक क्रैश, हार्ट अटैक और बैंक बेचने के फैसले ने आरिफ हबीब को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें समझ आ गई थी कि अगर इस मुल्क में अपना नाम और एम्पायर बचानी है तो उन्हें ठोस असासे यानी हार्ड एसेट्स बनाने होंगे। सबसे पहले उनकी नजर पड़ी कराची के इलाके मंगोपीर की पहाड़ियों में छुपे एक खंडर पर। यह थी जावेदान सीमेंट की पुरानी और खस्ता हाल फैक्ट्री। उसकी मशीनें गल सड़ चुकी थी और उसके जहरीले धुएं से आसपास के लोग तंग थे। कोई भी समझदार बिजनेसमैन एक डूबती हुई फैक्ट्री क्यों खरीदेगा भाई? लेकिन आरिफ हबीब की नजर फैक्ट्री की जंग आलूद मशीनों पर नहीं बल्कि उस फैक्ट्री की 1300 एकड़ जमीन पर थी। 2006 में उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर ये कंपनी खरीद ली, सिर्फ 4.3 अरब रुपए में। फिर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने फैक्ट्री को अपग्रेड नहीं किया बल्कि उसे जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया। उसके बड़े बड़े टावर्स गिरा दिए और इस खंडर को बना दिया एक हाउसिंग सोसाइटी। जी हाँ, ये वही जगह है जिसे आज हम और आप नया नाजिमाबाद के नाम से जानते हैं। वो लड़का जिसके घर वाले हिंदुस्तान से बेघर होकर पाकिस्तान पहुंचे थे, अब पाकिस्तान में लोगों को घर बेच रहा था। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं बॉस। जैसे ही आरिफ हबीब ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, उन पर मुकद्दमात की बारिश हो गई। हरीफों ने इल्जामात लगाना शुरू कर दिए कि ये जमीन सिर्फ माइनिंग के लिए थी, उसे हाउसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि नया नाजिमाबाद एक बड़ा चैप्टर है, उस पर एक अलग से डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। बल्कि अब तो सेंट्रल में भी एक और सोसाइटी का बड़ा दरवाजा खुलने जा रहा है, उस पर डिटेल में डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। लेकिन अगर आप चाहें तो खैर, अभी बस इतना जान लें कि आरिफ बिल आखिर ये कानूनी जंग जीत गए। आज नया नाजिमाबाद में चंद 100 नहीं 20,000 से ज्यादा फैमिलीज आबाद हैं। और फिर आरिफ हबीब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फातिमा ग्रुप के साथ मिलकर पाक अरब फर्टिलाइजर और फातिमा फर्टिलाइजर को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। मित्सुबिशी जैसी जापानी कंपनी को साथ मिलाकर आयशा स्टील मिल्स खड़ी कर दी। क्लिफ्टन के साहिल पर डॉल्फिन सिटी के साथ मिलकर साउथ एशिया का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मुतारिफ करवाया। सचल एनर्जी के नाम से विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगाए। अपनी जिंदगी की 70 बहारें देखने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ दोबारा बना लिया। फैक्ट्रियां, शहर, खाद के कारखाने, सब कुछ। लेकिन ऐसा लगता था कि एक पुराना हिसाब अभी बाकी है। 2006 का हिसाब, जब स्टील मिल्स उनके हाथ से छीन ली गई थी और मुल्क में प्राइवेटाइजेशन को ब्रेक लग गए थे। आरिफ हबीब को अब एक ऐसे आखिरी छक्के की तलाश थी जो उनकी लेगेसी को अमर करते, और 2025 में उन्हें वो मौका मिल गया। 23 दिसंबर 2025, वही दिन कि जिससे हमने इस वीडियो का आगाज किया था। इस्लामाबाद का एक हाई सिक्योरिटी हॉल, सामने मेज पर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एसेट, वही एयरलाइन जिसने पिछले 20 सालों में रियासत के 800 अरब रुपए डुबो दिए, जिस पर 650 अरब रुपए से ज्यादा का कर्जा था, जिसके पायलट्स के जाली लाइसेंस स्कैंडल ने यूरोप और अमेरिका के दरवाजे बंद कर दिए थे। यहां तक कि IMF की भी बस हो गई थी। समझें, उसने भी पाकिस्तान को कह दिया था PIA बेचो वरना बेल आउट भूल जाओ। बिलाखिर नीलामी शुरू हो गई। अब सुनिएगा। एयर ब्लू 26.5 अरब रुपए बोली लगाकर फौरन रेस से बाहर हो गई। अब मैदान में सिर्फ 2 कंसोर्शियम बचे। एक को लीड कर रहा है लकी सीमेंट और दूसरे को आरिफ हबीब लिमिटेड। बंद लिफाफे यानी सील्ड बिड्स को खोला जाता है। लकी सीमेंट की बोली थी 101.5 अरब रुपए। हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर आरिफ हबीब की कंसोर्शियम की बिड खोली गई और जानते हैं ये ऑफर कितने की थी? 115 अरब रुपए। एकदम बहुत बड़ी छलांग, लकी सीमेंट की बोली से कहीं ज्यादा। फिर 30 मिनट की ब्रेक हुई और फिर आया वो लम्हा, वो मोमेंट जो यकीनन आरिफ हबीब को 50 साल पीछे ले गया होगा। सन 1970 की कराची स्टॉक मार्केट। ब्रोकर्स चीख चीख कर शेयर्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक ओपन आउटक्राई सिस्टम है। और अब 2025 में PIA की ऑक्शन में भी यही होने वाला था। अब खुली बोली शुरू होने वाली थी। एक जंग शुरू हो गई।
दोनों ग्रुप्स एक से बढ़कर एक बोली लगाना शुरू करते हैं। रेट तेजी से ऊपर जाने लगता है। 130 अरब रुपए, 132 अरब रुपए और फिर लकी सीमेंट 134 अरब रुपए पर आकर रुक जाता है। बोली आरिफ हबीब की पहली ऑफर से 19 अरब रुपए ऊपर आ चुकी है। कुछ पता नहीं कि यह खेल कब तक चलेगा, कौन पहले हार मानेगा। क्या पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खसारे में जाने वाली कंपनी को इतने पैसों में खरीदना चाहिए या नहीं? कहीं ये महंगा सौदा तो नहीं? ये बहुत से सवाल आरिफ हबीब के जहन में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें देखकर तो लगता था कि उन्हें बस जीतना था, हर कीमत पर। Is 128 billion rupees. 129 billion. Ji, our revised bid is 130 billion rupees. We'll bid 131 billion. 132 billion. 133. Ji, our revised bid is 134 billion rupees. 135 billion. आप खुद ऑक्शन की वीडियो देखिए, गौर कीजिए जरा। जब भी आरिफ हबीब कंसोर्शियम की तरफ से बोली बढ़ती है, लकी सीमेंट के नुमाइंदे कई मिनट्स का टाइम लेते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और फिर ऑफर को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ आरिफ हबीब अपने पुराने साथी नसीम बेग के साथ बैठे हैं, पुरसुकून, कोई टेंशन नहीं। उनका गेम अलग ही लग रहा है। उधर लकी सीमेंट की ऑफर आती और इधर एक सेकंड रुके बगैर नसीम बेग अगली ऑफर फेंक देते हैं। बिल्कुल जैसे शतरंज की चाल हो, एक खिलाड़ी बहुत सोच समझकर चल रहा है और दूसरे को पता है क्या चलना है और दूसरा आगे फौरन प्यादा बढ़ा देता। बिल्कुल क्लियर लग रहा था कि वो फैसला कर चुके हैं, पीआईए को लेकर ही घर जाएंगे। और फिर यही हुआ। लकी की तरफ से 134 अरब रुपए की बोली लगी। नसीम बेग ने पलक झपकते ही नई कीमत लगा दी, 135 अरब रुपए। और दूसरी तरफ खामोशी। कुछ मिनट का इंतजार, आपस में डिस्कशन और कुछ देर बाद लकी सीमेंट का नुमाइंदा माइक ऑन करता है और बस एक जुमला बोलता है, We would like to congratulate Arif Habib Consortium. I would like to congratulate Arif Habib Consortium on नेशनल एयरलाइन आरिफ हबीब की हो गई। वो लड़का जिसकी जिंदगी की पहली कमाई 60 रुपए थी, आज वो पाकिस्तान की हवाओं का मालिक बन गया। लेकिन एविएशन की दुनिया कोई स्टॉक मार्केट नहीं है। समझें, आरिफ हबीब की जिंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स है। क्या वो इस पिच पर खड़े रह पाएंगे, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन पीआईए की डील पर भी बड़े एतराजात हुए। कुछ लोग तो वही स्टील मिल्स वाला इल्जाम लगा रहे थे कि पीआईए को सस्ते दामों बेच दिया गया है, वगैरह वगैरह। इससे मुताल्लिक मैंने वैसे ये वीडियो बना रखी है डिटेल में, आप चाहें तो देख सकते हैं। मगर बॉस, सारी बातें अपनी जगह, एक बात तो मानना पड़ेगी, आरिफ हबीब एक क्राइसिस इन्वेस्टर हैं। एक ऐसा बंदा जिसने 50 सालों तक सिर्फ उसूल पर अपना गेम खेला है। जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आए और सब डर कर भाग रहे हों, तब पाकिस्तान पर ही पैसा लगाओ। हमें यहाँ से भागने की बात नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिवली काम करना चाहिए इसके लिए। और इंशाल्लाह हम रिकवर कर जाएंगे। पाकिस्तान जो है वो रिकवर कर जाएगा। इतनी हिम्मत, इतनी दिलेरी, इतनी बहादुरी किसी और में है तो बता।